गाड़ी ने ना कुचल के रख दिया, घर आ रहे थे। अच्छा, काम तो अभी आप इद्दत में थी हाँ जी। और भाई के गम भाई में? के गम में मैं आ गई माँ के पास, मेरी माँ अकेली, मेरी माँ अकेली थी। मेरी ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਦੀਨਿਓਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਦੀਨੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका? ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੀਜੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਦੋਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਜ ਵੱਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਜ ਵੱਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਆਵੇ, ਆ ਰਾੜ ਪਾਇਆ ਆ, ਆ ਬਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਰਾੜ ਪਾਇਆ ਹਾਂ। अच्छा। अभी आपके बेटे को जिन जालिमों ने मार दिया, बेदर्दी से मार दिया, हाँ जी, वो जालिमों के लिए आपका मुतालिबा सजाए मौत नहीं, गोली ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ, बस गोली मार। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ, नहीं नहीं, आप माँ हैं, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ। आप हमारी भी माँ की जगह। ਮਦੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿਖਾ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਬੀਆਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। कितना अरसा पहले आया था? ਆ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ यानी कि 3-4 साल पहले वो सब कुछ वहाँ से छोड़ के अपनी माँ की छोड़ खातिर के यहाँ मेरा करके आ गया, मेरा उसकी करके मेरा जन्नत यहाँ पे पुੱਤਰ थी ना। ਉਮਰਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। कितने बच्चे हैं आजम के? ਆਜ਼ਮ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ, 1 ਕੁੜੀ, 3 ਬੱਚੇ ਆ। बेटा छोटा है? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਿਆਹਿਆ ਆ, अच्छा ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਵਿਆਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਬੇਟੀਆਂ, अच्छा ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। अच्छा। ज्यादा क्या कह के बुलाता था आपको? किस तरह से कोई चीज खाने की उसे ਅੰਮੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਵਾਣਾ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ, अच्छा ਕਦੇ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਆਣੀ, ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਆਣੀ। ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣ। अच्छा ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਮੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੁੱਟੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੀ ਆ, ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ। ਰਕਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ज्यादा शौक से क्या खाता था? आपको क्या फरमाइश? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, अच्छा ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਐਡਾ ਕਿਸੇ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਰੇ, क्या मारा उन्होंने बताया आपको? ਲਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ। अच्छा, चेहरे पे मारते रहे? ਹਾਂਜੀ, ਚਿਹਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੇ, तो कसूर क्या था आपके बेटे? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਹ ਰਕਸ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ ਮਾਰੇ, अच्छा ਰਕਸ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ ਮਾਰੇ। अच्छा। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ कहते हैं ਲਾਇਆ। कि जब औलाद पे कोई ऐसी आफत आती है तो माँ का दिल तो उस दिन पहले ही बुझ जाता है। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫੋਨ दिल बुझा हुआ था आपका? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਜੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਤਾ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। आपकी अम्मी कह रही थी? नहीं, मैं कह रही थी अपनी बेटी को, अबूज पता नहीं क्यों नहीं, मैंने नींद ही नहीं आती पी आज, पता नहीं क्या की ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੜੱਪੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਗਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਣਾ, ਅੰਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲਾ। ਅੰਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਬੂਟਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਬੂਟਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ। उसका नाम तो आजम था, तो ਆਜ਼ਮ। आप उसे प्यार ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੂਟਾ ਦਿੱਤਾ 3 ਧੀਆਂ ਤੋਂ, मैं मोहम्मद बूटा ही कहना, अच्छा मैं बूटा ही कहना। इसीलिए आप प्यार से कहते मैनू दादी होंदी ने इंज उंगली भी नहीं लान दी जिन्ना तक दोबारा बच्चे मैनू कदे भी नहीं। इनू सारा महला चुकदा, सारे रिश्तेदार, अच्छा सारिया तिन्ना भैणां तो है। आपने अब सब्र रखना है ना? हाँ सब्र रखना है ना, जिस तरह आजम के बच्चों के लिए रखना है ना, हाँ जी हैं उसकी बीवी के लिए रखना है ना, वो सहारा तो आप लोग हैं उसका, हाँ जी हैं और आप इंसाफ की जंग भी लड़नी है, हाँ जी लड़नी है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह लड़नी। हम इंशाल्लाह। सब आपके जिंदी साथ हैं, जिंदी हम सब आपके साथ हैं। जिंदी दी तो उन्हां बच्चों दी मैं दादी मां। हाँ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ऐसे ही है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ नाज़रीन, बेबस माँ है, हाँ। कोशिश करती है कि लफ्ज़ों को जोड़ तोड़ करके हमें आप बीती सुनाए, लेकिन क्या करे, वो ऐसा हीरा खो चुकी है, अपना लख्त जिगर खो चुकी है, अपना बेटा खो चुकी है कि हर वो माँ ये तड़प समझ सकती है जिसने अपनी औलाद पर कभी कोई बुरा वक्त गुजरते देखा है या औलाद को जुदा होते पाया अपने से। शायद मैं और आप लफ्ज़ों में उन चीज़ों को बयान नहीं कर सकते हैं कि जिस तड़प, जिस दर्द से ये गुजर रही है। उस सफाक दरिंदे ने ऐसा क्यों किया है वो भी आपको सुनवाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना फ्री टाउन में मौजूद है। मेरे साथ वो सफाक दरिंदे मौजूद है जिन्होंने बेदर्दी से एक रिक्शा ड्राइवर को महज वारदात की गज़ से छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसको जिस वक्त मजरूब करके फेंक गए, वापस चेक करने आए कि कहीं इसकी सांसें तो नहीं चल रही। क्या इनका इरादा सिर्फ उससे वारदात करना था या ये कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे थे? वो इन्हीं की जुबान से आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अरसलान। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। तुम्हारी तरफ से मैं बाद में आती हूँ। कितने पर्चे हैं तुम पर पहले? 10-11 पर्चे हैं। किस किस चीज़ के? एक कत्ल का है और 10 चोरियों के पर्चे। वाह वाह वाह, बता तो ऐसे रहे हो जैसे टॉफियाँ चोरी की हैं। 11 पर्चे हैं। जी। पहला कत्ल किस उम्र में किया था? तकरीबन 2020 का कत्ल है। 2020 का, यानी 3 साल पहले। जी। तो इन 3 सालों में तुमने क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना था कि तुम एक के बाद एक दर पे पर्चे तुम पे हो रहे थे? नहीं मैडम, तो फिर क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी, बस। खुशी होती है वारदात करके? नहीं जी, बस मजबूरी थी। पैशन है? तुम्हें क्या डाकू बनने का शौक था? नहीं जी, तुम्हें कातिल बनने का शौक था? क्या वजह थी? कोई वजह नहीं। सरगना कौन है तुम लोगों का? कोई नहीं। कितना बड़ा गैंग है? कोई नहीं, हैं? मैं अकेला हूँ। तो ये साथी तुम्हारे साथ क्या है? जी। हैं? ये है। अभी तो गिनती में ये भी शामिल हो गया, पहले तो अकेले थे। जी। कि गिनती खराब है तुम्हारी? क्या क्या चोरी किया आज तक? मोटरसाइकिल चोरी की है और बस पैसे वगैरह, मोबाइल वगैरह, साइकिल वगैरह चोरी। कौन कौन सा फोन चोरी किया आज तक और कहाँ कहाँ से किया है? एक ही फ़ोन चोरी किया था बस, उसका बाद वगैरह तो मुझे ऐसे बताया जैसे पता नहीं 30,000 से ज्यादा किए हैं। कहाँ कहाँ से चोरी किए थे? लाहौर में एक काम किया था चोरी का, बस मोबाइल उधर से चोरी किया था। यानी मुख्तलिफ शहरों में वारदातें करते हो? जी। हैं? कभी लाहौर, कभी साहिवाल, कभी फैसलाबाद। जी। ऊपर देख के बात करो, मुझे इधर देख के बात करो। जी। ऐसा काम ही नहीं करना था कि नजरें झुकानी पड़े। डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए। पैसे कहाँ कहाँ से चुराते थे? पॉकेट मार भी थे? नहीं। फिर असला भी रखा हुआ है? नहीं। तो किस बुनियाद पर वारदात करते थे? क्या दिखाते थे लोगों को? कुछ भी नहीं, बस कोई सोया हुआ है उसका पर्स निकाल लिया या चोरी कर तो लिया। कत्ल एवं ही हो गया। फिर कैसे हुआ पहला कत्ल? पहला नशे ही था, वो मर गया, वाला साहब भी उसमें रहे हैं। ओ अच्छा, तुम्हारा बाप भी इन्वॉल्व है? हैं? तो सरगना बाप हुआ टीका ना? लगाता था, नशे ही था, वो पहले मर गया, उस केस में हम बरी हो गए हैं। वो टीका लड़ गया था, वो नशे ही हमारे खाते में पड़ गया। हाँ, वो काम वकीलों को बड़े करते थे टैक्ट होते हैं बंदे को बाहर निकालने के। तुम्हें वकील अच्छा मिल गया होगा उस वकील वक्त। कोई भी नहीं किया, वकील ना किया था, सरकारी वकील मिला था, जज ने इंसाफ किया। उसका मदई भी कोई नहीं, टीके लगाता था, नशे ही था, उसको पनाह दी हुई थी। वो अच्छा, तुम्हें ये रास्ता मिल गया है कि अगर कोई मुदैयत में ना आए, गरीब लोगों को लूटो, वो मुदई बनने के काबिल नहीं होते, तो सरकारी वकील मिल जाता है, वकील का खर्चा भी बच जाता है। कितने पैसे लूट चुके हो आज तक? 20-30 हज़ार। ये आज तक नहीं, ये एक वारदात बता रहे हो मुझे। आज तक कितने लूट चुके हो? आज तक 20-30 हज़ार पैसे। उम्र कितनी है तुम्हारी? 22 साल है। 20-22 साल की उम्र में तुम 12 पर्चे लेके इस वक्त यहाँ पर मौजूद हो। कत्ल का तुम्हारे पे इस वक्त यहाँ पर तुमने किया है, इल्ज़ाम नहीं, तुम मान रहे हो तुमने किया है। ये कत्ल तुमने किया है ना रिक्शा ड्राइवर का? तो तुम इसके मुर्तकिब ठहरे हुए इस जुर्म के भी, तो तुम में शर्म नहीं आती? आती है। किस बात पे आती है? कि पकड़ा गया हूँ? नहीं पकड़े, क्योंकि वैसे हैं? किस बात पे आती है शर्म? इस वक्त तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हें देख रहा होगा। जी। तुम्हारे जानने वाले तुम्हें देख रहे होंगे। शर्मिंदगी नहीं हो रही? ये तुम्हें अल्लाह ने रुस्वा किया है। जी। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? जो अल्लाह बेहतर कर सके। क्या क्या होना चाहिए? कत्ल का बदला कत्ल होता है ना, हदूद लॉ है, इस्लामी कानून है, अल्लाह ने तो कवानीन दिए हैं ना दुनिया में। जी। जी। तो फिर कत्ल का बदला कत्ल है, अल्लाह तो यही चाहता है। जी। इस्लामी कानून तो यही कहते हैं, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। फिर
अपने लिए जुबान नहीं हिल रही अब? जी कर दिया जाए कत्ल, कर दिया जाए, जी जी कर दिया जाए। उस दिन हुआ क्या था? मैडम किराए की वजह से मुंह मारी हुई, उसने माँ बहन की गाली निकाली और तैश में आके तुम हमने 2-4 ये थप्पड़ मार लेते, इतना ही मैडम, तुम्हें गुस्सा था तो मैडम हमसे 12 था वो। हैं? तो उतर जाते रिक्शे से। हमने उतरने की कोशिश की, मुतालबा किया है कि कोर्ट 86 के, हमने कहा जितना पैसे काटने हैं काट लो, बकाया पैसे हमें दे दो। बकाया कौन से? 1000 तो तय हो चुका था। 1000 रुपया दिया तुमने था क्या ना, 5000 रुपया दिया हुआ था? 1000 रुपया दे दिया था और किराया उसको 1000 रुपया दिया है, 500 का पेट्रोल उसने डलवाया। उसने कहा 500 रुपये का मैंने पेट्रोल डलवा लिया है और 500 रुपया हम ले लो। मैंने कहा नहीं, कोर्ट पापतन चौक से कोर्ट 86 तक जितना किराया बनता है वो काट लो, बकाया दे दो। वो कहता है नहीं आप 1500 रुपया मुझे पूरा चाहिए। हमने 500 रुपया और दिया और वो चला गया। समझ नहीं आई मुझे ये बात। सवारी के साथ जबरदस्ती नहीं होती, सवारी जहाँ चाहे उतर जाती है। सवारी हमने उतर गए ना, हम 500 ये जबरदस्ती नहीं होती। किया है और उससे बोला है कि 500 रुपया पापतन चौक से कोर्ट 86 का कितना किराया बनता है उतना काट लो। कहता है मैंने 500 तुम का 2 पेट्रोल थे ना, वो डलवा- 1 था। जी तुम लोग उसे मारपीट करके उतर गए थे ना, जी उतर के फिर उसको मारपीट करके छुरियां मार ली थी ना, जी। मजरूब हो गया था वो। जी फिर वहां से रिक्शा लेके क्यों भागे? हमने अपनी जान बचाने के लिए भागे। वापस क्यों गए फिर? वापिस उसको यही इस बात पर जवाब दो ना मुझे कि उस वक्त वापस- जान बचाने के लिए तुमने छुरियां मार ली जो कि वो निहत्था था, जी फिर वहां से रिक्शा लेके भाग गए, फिर साहिवाल शहर आके यहाँ से वापस क्यों गए? उसको देखने के लिए कि वो जिंदा तो नहीं है। जी ऐसे ही है जी। तो इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग में फतूर था, तुमने वारदात करनी थी और वारदात के बाद तुम्हें यह था कि अगर ये बच गया तो कहीं रिक्शे का नंबर ना बता दे, कहीं मुद्दई ना बन जाए। ऐसे ही था ना? ऐसे ही थे। वारदात की नियत थी ना, तो फिर गोल गोल क्यों घुमा रहे हो अभी तक? हाँ भाई, जी मैडम तुम कब से हो इसके साथ? मैडम साहब तकरीबन महीना 2 महीने हो उससे पहले क्या करते थे? गए। सब्जी का काम करता तो सब्जी के काम करते, क्या तकलीफ हुई थी कि डकैती की तरफ आ गए? ये भाई के साथ चले गए क्या सब्जी का काम करने के लिए नूर से। ये सब्जी का काम कर रहे हो? नहीं मैडम, यहाँ क्या सब्जी काटते काटते पहुंच गए हो? नहीं मैडम, किसी इंसान को काट के पहुंचे हो? नहीं मैडम। इंसान को काट के पहुंचे हो ना? हाँ जी मैडम साहब, कितने पर्चे हैं तुम पे? मेरे पास 4 पर्चे हैं। 4 पर्चे। तो तुम मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे 4 दफा उम्रा करके आए हो। 4 पर्चे किस चीज के हुए हैं? साइकिल चोरी साइकिल चोरी करके क्या करते थे? भेज देते, कहाँ पे? कोई दोस्त भी ले लेते। तुम्हारी उम्र कितनी है? 24। शादीशुदा हो? नहीं मैडम साहब, तो साइकिलें चोरी करके बेच के क्या करते थे जब कमा तो उधर से भी रहे थे सब्जी की तरफ से? नशा करता। अच्छा, कब से कर रहे हो नशा? तकरीबन 7-8 साल हो। अच्छा, 7-8 साल से कर रहे हो। हाँ जी मैडम साहब। तो ये 4 पर्चों में कत्ल क्यों तुमने कर दिया वह मैडम साहब हो गया है ये कत्ल। है? ये कत्ल कर दिया। तुमने कोई मक्खी या मच्छर नहीं मारा, इंसान मारा है। जी मैडम साहब। जितनी आसानी से मुझे बता रहे हो गया, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे खिड़की में चूहा आ गया तो हो गया। जी मैडम। इंसान मारा है ना? हाँ जी मैडम साहब। किस बेदर्दी से मारा, जरा सारी कहानी सुनाओ। अब मैडम साहब लड़ाई हो गई थी। कैसे हुई, कहाँ से बैठे, शुरू से सुनाओ। चौक पापा से बैठे। तुम लोग उस दिन क्या, कैसे घर से निकले, क्या सोच के निकले, मुझे सारी कहानी सुननी है। कुछ नहीं मैडम साहब, यही बात है। यही क्या? चौक पापतन से गए से मैडम साहब सब्ज मंडी के काम करने के लिए। आगे से लड़ाई हो गई, मैडम साहब उसे कत्ल कर दिया। हाँ, वाह वाह, बड़ी 2 मिनट की मुझे कहानी सुनाई है, जबकि वारदात 3-4 घंटे ले गई थी। हैं? पाकपतन चौक से निकले, रिक्शे वाले को हाथ दिया, रिक्शे वाला रुका, जी मैडम। क्या बात की उससे? उससे साथ किराया तय किया। कितना? 1500 रुपया मांग रहा था, 1000 रुपया तय किया। फिर मैडम आगे जाके उसको कत्ल कर दिया। क्यों? वह मैडम साहब गालियाँ निकालने हैं। किस बात पे? यही 1500 रुपया आगे से मांग रहा था। तो उतर जाते रिक्शे से। वह मैडम साहब गलती हो गई है मैडम। फिर वहां से रिक्शा लेके क्यों भागे? वह मैडम साहब वो इसलिए भाग गए थे, ये पता नहीं। वापस क्या करने गए? वापस उसको देखने गए क्या देखने गए? कि जिंदा के नहीं। फिर क्या किया? जिंदा था वो? हाँ जी मैडम। सांसें ले रहा था? हाँ जी मैडम साहब। फिर मैडम साहब उसको छुरी से काट दिया उसका क्या? गला। शर्म नहीं आई उस वक्त? वो तड़पा नहीं? जी मैडम। तड़फा था? हाँ जी। कैसे तड़फा था? बताओ जरा, इशारे से बताओ कैसे तड़फा था, तड़प कैसे? मैडम साहब ऐसे। तुम्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना? जी मैडम। अपने मुंह से कहो।
कि जो मैंने किया मुझे सजाए मौत मिलनी चाहिए? कहो, जी मैडम साहब, कहो। मुझे मौत हैं? सजाए मौत मिलनी किसे? मुझे। तुम्हें? मुझे भी चाहिए, क्या? सजाए मौत चाहिए। सजाए मौत चाहिए। ये हैं वो सफाक जिन्होंने तड़पा तड़पा कर एक इंसान की जान ऐसे ले ली जैसे कोई मस्बा खाने में जानवर को ज़िबा करता है। ये नहीं जानते थे कि वो माँ का कितना लाडला है, ये नहीं जानते थे कि वो घर का वाहिद कफ़ील है, ये नहीं जानते थे कि उसके अपनों को कितनी ज़रूरत है। इन्हें सिर्फ चाहिए था तो वो रिक्शा, इन्हें सिर्फ चाहिए था तो वो किराए के पैसे वापस, और इन्हें सिर्फ एक कत्ल करना था, टेरर फैलाना था और यहाँ से रूपोश हो जाना था। न जाने इससे पहले कई बार ये रूपोश हुए, कई पर्चे हैं इनके ऊपर, लेकिन वो उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है। वो आपको एक बार माफ़ करता है, 2 बार माफ़ करता है, 3 बार माफ़ करता है, लेकिन जब एक ही गुनाह इंसान बार बार करता है तो अल्लाह ताला भी रस्सी खींच लेता है। और ये खींची हुई रस्सी है कि आज ये 25 करोड़ आवाम के सामने इस वक्त शर्मिंदा है। पूरी दुनिया देख रही है कि ये कातिल है, तमाम इलाके देख रहे हैं कि ये कातिल है, और हर एक की यही अपील है कि इन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। और मुझे पूरा यकीन है अपनी अदालतों पर कि एटलीस्ट इस केस के बाद अब ये हैंग होंगे, ये इस इंसानी मुआशरे में नहीं रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली किसी स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले जाते जाते इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि हमारे नाजरीन इन तमाम स्टोरीज़ से क्या सीखते हैं, क्या मज़ीद सीखना चाहते हैं, और कौन से ऐसी इश्यूज़ हैं जिनको हम हाईलाइट करें तो शायद हमारा माशरा संवर सके। अल्लाह हाफ़िज़।